Hello students, in this video we are going to discuss full course 3 of term 2 of +1 CBSE. Now this test contains two papers, paper 1 which is single answer type MCQs containing 30 questions and paper 2 is completely subjective in nature which contains 14 questions. And if you want the benefit out of this video, then you must attend the discussion of each and every question carefully. So starting with the discussion of the very first question of paper 1, that is the solution of the inequality which is given is. Now solution of inequality का मतलब है we have to find all those real values of x जो इस inequality को करेंगी satisfy. For that we need to solve this inequality. तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 4x plus 17 must be less than equals to bracket open करी we will get 3 minus 3x. In order to find the values of x हम actually terms एक साइड क्लब कर लेते हैं. तो adding 3x on both sides तो same number add करने से sign of inequality will remain the same. तो यहां से simplify करा we will get 7x plus 17 less than equals to 3. Now subtracting 17 from both sides we will get 7x less than equals to minus 14 and जैसे ही हम 7 से divide करेंगे तो finally we will get the values of x और sign of inequality remains same क्योंकि हमने positive number से divide करा. तो x की कौन सी वैल्यूज आई -2 और उससे छोटी सारी रियल वैल्यूज. -2 और उससे छोटी कहां तक चलता ही जाएगा -infinity तक. तो फाइनली द आंसर इज -infinity to -2 एंड ध्यान से क्योंकि इक्वालिटी है तो -2 विल बी इंक्लूडेड विच मैचेस विद ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कहता है इफ f of x is equals to this then f dash x is equals to. Now we have to find the derivative of the given function and clearly नजर आ रहा है f of x is basically product of two different functions. तो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल एंड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल f dash x विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड प्लस नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस cos x इज sin x का डेरिवेटिव दैट इज cos x एंड ध्यान से माइनस है और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड फाइनली द लास्ट टर्म इज sin x माइनस cos x इनटू e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव विच इज e रेज टू द पावर x. अब जैसे ही हम e रेज टू पावर x दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 2 इंटू e रेज टू पावर x इंटू sin x विच मैचेस विद ऑप्शन A. Now passing on to question number 3. The radian measure corresponding to 40 degree 30 minutes is. Now in order to convert this angle into radian measure, सबसे पहले हमें इसको completely degrees में लिखना पड़ेगा. Degrees में लिखने के लिए we will write this as 40 degree plus 30 minutes. And 30 minutes को भी degrees में convert करने के लिए we know the relation that is 1 degree equals to 60 minutes. And using this relation अगर मेरे को 30 मिनट्स को डिग्रीज में बदलना है आई विल डिवाइड दिस बाय 60. तो वी विल गेट 30 बाय 60 डिग्रीज. ये बन जाएगा 1/2. जैसे ही एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 81/2 डिग्रीज. अब ये कंप्लीटली डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया. अब मैं इसको रेडियंस में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं. कैसे? वी नो द रिलेशन दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस एंड यूजिंग दिस रिलेशन अगर इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय पाई बाय 180. तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 9 पाई बाय 40 विच इज ऑप्शन सी. पासिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज centroid of a triangle ABC is at 2, 3, 6. If the coordinates of points A and B are given, then coordinates of point C are. तो हम एक काम करते हैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट दे आर अल्फा बीटा एंड गामा. एंड अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो वी कैन इजीली राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड. कैसे?
पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट होल डिवाइडेड बाय 3 will give us the x coordinate of the centroid and that is equals to 2. Similarly, centroid का y coordinate will be y1 plus y2 that is minus 8 and plus y3 that is beta by 3 will be equals to y coordinate of the centroid, and similarly z coordinate of centroid will be equals to z1 plus z2 plus z3 gamma by 3. अब जैसे ही हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे we can easily find the value of alpha, beta and gamma and answer matches with option B. Now the fifth question is total number of words formed with 3 vowels and 3 consonants taken from 5 vowels and 4 consonants is equal to. वर्ड्स बनाने के लिए हमें लेटर्स को आपस में अरेंज करना है, बट अरेंज करने के लिए लेटर्स कौन से हैं हमारे पास? वी नीड 3 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम 5 वॉवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स. अब मान लेते हैं मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स की अगर बात करूं तो 5 वॉवल्स ए ई आई ओ यू एंड 4 कॉन्सोनेंट्स से डी एफ जी एच. हमें चाहिए वर्ड्स फॉर्म करने के लिए 3 वॉवल्स. कौन से 3 आउट ऑफ दीज 5? तो मैं सबसे पहले वो 3 वॉवल्स क्या करूंगा इन 5 में से सेलेक्ट, एंड वी कैन सेलेक्ट एनी 3 वॉवल्स आउट ऑफ दीज 5 इन 5C3 डिफरेंट वेज. सपोज वॉवल्स आ गए हमारे पास ए ओ यू, ये 3 वॉवल्स हमने सेलेक्ट कर लिए. अब वर्ड फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए 3 कॉन्सोनेंट्स, बट कौन से 3 कॉन्सोनेंट्स? We have to select those 3 from these 4 consonants. तो इन 4 में से मेरे को 3 consonants select करने हैं. Select करने के कितने ways हैं? 4C3 different ways. अब suppose 3 consonants आ गए D, H and G. 3 vowels हैं, 3 consonants हैं. Total we are having 6 letters. अब मैं इनको जैसे ही arrange करूंगा सबको, we will get the total different words. और इन 6 को arrange करने के कितने ways हैं? That is 6P6. वॉवल्स भी सिलेक्ट करने हैं, कॉन्सोनेंट भी सिलेक्ट करने हैं, फिर उनको अरेंज भी करना है in order to form the words. That's why using multiplication rule we will get the total number of words. जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा 28800 which matches with option D. Passing on to question number 6. कहते हैं if the length of major axis is 4 times the minor axis then eccentricity of the ellipse is. So we are given length of major axis is 4 times the length of minor axis and the ultimate aim is we have to find the eccentricity which is C by A. तो C by A फाइंड करने के लिए एक रिलेशन A और B में हमें ये पता है, एक रिलेशन A, B और C में in case of ellipse we know that is B square is equals to A square minus C square. Now in order to find the value of C by A, मेरे को C by A चाहिए, तो मैं काम करता हूं I will divide both sides by A square. तो B square by A square means B by A का full square. A square by A square is 1. C square by A square means C by A का full square. और यही टर्म हमें चाहिए वो हमने यहाँ जनरेट कर ली. तो C by A का होल स्क्वायर साइड चेंज करेंगे तो we will get C by A का होल स्क्वायर equals to 1 minus B by A का होल स्क्वायर. अब अगर आप ध्यान दो B by A की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन. तो 2 से ये 2 हुआ कैंसिल आउट, तो B by A दैट इज इक्वल्स टू 1 by 4. जैसे यहां वैल्यू प्लेस करेंगे तो फाइनली इसेंट्रिसिटी टर्न्स आउट टू बी √15 by 4 which matches with option A. Now 7th question is if the letters of the word probability are arranged at random then the probability that the 2 i's occur together is. Now in order to find the probability of any event we must know the total number of possible outcomes. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उतनी ही होंगी जितने डिफरेंट वेज में हम प्रोबेबिलिटी वर्ड के सारे लेटर्स को अरेंज करेंगे टेकन ऑल एट ए टाइम. तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं लेटर्स हैं कौन से.
प्रोबेबिलिटी वर्ड में P, देन R, O, V, फिर आया A, फिर आया B, I, L, फिर अगेन I, देन T, देन Y। और अगर आप काउंट करो, दीज आर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर आर 11 लेटर्स, और उनमें से कुछ अलाइक भी हैं, 2 B आर अलाइक, 2 I आर अलाइक। तो अगर मेरे को इन सबको अरेंज करना है, टेकन ऑल एट ए टाइम, तो ध्यान से 11 फैक्टोरियल बिकॉज टोटल 11 लेटर्स हैं, डिवाइड बाय, बिकॉज 2 B आर अलाइक, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 I आर ऑल्सो अलाइक, तो अगेन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये आ गई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हमें फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होंगी? इन सब वर्ड्स में से वो वाले वर्ड्स फेवरेबल होंगे जिनमें 2 आइज इकट्ठे अक्कर होंगे। और क्योंकि 2 आइज को इकट्ठे अक्कर होना है, तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों आइज को इकट्ठे टाई कर देता हूं। नाउ वी विल ट्रीट दीज टू एज अ सिंगल यूनिट। जो बचे हुए लेटर्स हैं, दे आर P, R, O, V, B, A, L, T, Y। अब क्योंकि 2 आइज को इकट्ठे अक्कर होना है, वी विल ट्रीट दिस एज अ सिंगल यूनिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नाउ वी आर हैविंग 10 यूनिट्स। इन सबको इकट्ठे अरेंज करने के कितने वेज हैं? 10 फैक्टोरियल बाय, बिकॉज 2 B आर अलाइक, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ध्यान से, ये एक ही यूनिट है, तो वी विल ट्रीट दिस एज अ सिंगल यूनिट। तो अब की बार सिर्फ ये 2 लेटर्स अलाइक हैं, इसीलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा। अब अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट 2 आइज अकर टुगेदर विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 2/11, विच इज ऑप्शन डी। Now passing on to the next question, that is, if y is equals to secant x into log x, then dy by dx is equals to, basically we have to find the derivative of the given function। and अगर आप given function की तरफ ध्यान दो, this is product of 2 functions, तो derivative find करने के लिए we will use the product rule। तो differentiate both sides with respect to x, so left hand side dy by dx will be equals to, using product rule, that is first function as it is into derivative of the second function plus now second function as it is into derivative of the first, that is secant x का derivative। अब जैसे ही हम स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करेंगे, we will get secant x into derivative of log x is 1/x plus now log x as it is and secant x का derivative is secant x into tan x। अब जैसे ही हम इन दोनों टर्म्स में से secant x कॉमन निकालेंगे, we will get the final answer and that matches with option D। Ninth question of paper 1 is, the focus of a parabola is 0, -4 and directrix is y equals to 4, then its equation is। अगर आप ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान दो, चारों ऑप्शंस में इक्वेशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड पैराबोला की हैं, तो इट मीन्स डेफिनेटली पैराबोला होगा स्टैंडर्ड पैराबोला, मीन्स वर्टेक्स मस्ट बी एट ओरिजिन। और अगर आप ध्यान दो, फोकस इज गिवन ऑन द नेगेटिव y एक्सिस, दैट इज 0, -4, और वर्टेक्स क्योंकि ओरिजिन पे है, क्योंकि चारों ऑप्शन में स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करी हुई है, तो पैराबोला डेफिनेटली बनेगा ओपनिंग टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस। एंड इस टाइप का पैराबोला, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x² equals to -4ay। Now in order to find the equation, we just need the value of a, and a is basically distance between vertex and focus। Distance is 4 units। a की वैल्यू जैसे ही हम 4 प्लेस करेंगे, फाइनली इक्वेशन आ जाएगी x² equals to -16y, which matches with option B। Now the 10th question is, the length of a rectangle is 5 times the breadth if the minimum perimeter of the rectangle is 216 centimeter, then breadth, length, ऑप्शन सी में भी breadth और ऑप्शन डी में length। तो हमें बेसिकली breadth और length पे वर्क करना है, and the condition that is given to us is minimum perimeter of the rectangle। So it means perimeter of the rectangle
जो है दैट इज मिनिमम विच इज 216. तो इट मीन्स पेरीमीटर होगा या तो 216 या उससे ज्यादा. तो इट मीन्स पेरीमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 216. तो इस कंडीशन का यूज करके या तो हमें लेंथ या ब्रेड्थ पे इनइक्वालिटी चेक करनी है, कौन सी मैच करेगी विद द गिवन ऑप्शंस. लेट्स सी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स द ब्रेड्थ. तो अगर मैं ब्रेड्थ को सपोज कर लूं x, तो लेंथ हो जाएगी 5x और पेरीमीटर विल बी ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड दैट इज गिवन टू अस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 216. जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 12x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 216 और यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18. तो x इज बेसिकली द ब्रेड्थ. तो ब्रेड्थ आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 विच मैचेस विद ऑप्शन सी. नाउ 11th क्वेश्चन इज a wheel makes 240 revolutions in 1 minute. कहता through how many radians does it turn in 15 seconds? तो सबसे पहले तो टारगेट चेक करें. कहता थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 15 सेकेंड्स. ये फाइंड करने के लिए हमें पता क्या है, वी नो corresponding to one revolution wheel will make an angle of 2 pi radians. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब होगा तो ऑफ कोर्स 360 डिग्री कवर होगा, दैट इज 2 पाई रेडियंस. तो कुल मिला के अगर मेरे को ये चेक करना है कि 15 सेकेंड्स में व्हील ने कितना एंगल कवर करा, तो मेरे को ये ढूंढना है कि उसने कितने रेवोल्यूशन कवर करे. फॉर दैट वी आर गिवन दैट 1 मिनट में व्हील मेक्स 240 रेवोल्यूशंस. बट क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली सेकेंड्स पे जाना है, 1 मिनट को मैं लिख लेता हूं 60 सेकेंड्स. अगर 60 सेकेंड्स में 240 रेवोल्यूशंस हैं तो एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस होंगे? ऑफ कोर्स 240 डिवाइड बाय 60 दैट इज 4 रेवोल्यूशंस. हमें जाना है 15 सेकेंड्स में. अगर एक सेकेंड में 4 रेवोल्यूशंस हैं तो 15 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशंस होंगे? 15 into 4 दैट इज 60 रेवोल्यूशंस. तो 15 सेकेंड में 60 रेवोल्यूशंस कवर कर रहा है. तो अगर एक रेवोल्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 पाई रेडियंस है तो 60 रेवोल्यूशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा दैट इज 60 into 2 पाई 120 पाई रेडियंस होगा, which matches with option C. Passing on to question number 12. If 2 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards, then the probability of getting either both black cards or both queen cards is. तो अगर आप ध्यान दो यहां पे 2 डिफरेंट इवेंट्स हैं, both black और both queen. तो इवेंट्स हम डिफाइन कर देते हैं. से इवेंट ई इज गेटिंग बोथ ब्लैक कार्ड्स. इवेंट एफ हम एज्यूम कर लेते हैं दैट्स गेटिंग बोथ क्वीन कार्ड्स. तो अगर आप ध्यान दो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ईदर ई और एफ, ईदर गेटिंग बोथ ब्लैक कार्ड्स और बोथ क्वीन कार्ड्स. अब ई और एफ का मतलब है वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ. अब अगर आप ध्यान दो नेक्स्ट स्टेप जो आपको सोचना है दैट इज दोनों ब्लैक कार्ड्स अगर मेरे पास आ जाएं, क्या वो दोनों ब्लैक कार्ड्स क्वीन भी हो सकती हैं? ऑफ कोर्स. अगर आप ध्यान दो देयर आर टोटल 4 क्वीन कार्ड्स जिसमें से 2 ब्लैक होंगी तो 2 रेड होंगी. तो इट मींस हो सकता है ये दोनों इवेंट्स इकट्ठे अक्कर हो जाए, क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली अक्कर हो सकते हैं. दैट्स व्हाई probability of E union F will be equals to probability of E plus probability of F minus probability of their intersection. अब probability of E means getting both black cards. अब total black cards होते हैं 26. तो 26 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं हमने एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगी 52 में से कोई भी 2 कार्ड्स आ जाएं एंड दैट कैन बी डन इन 52 2 ways. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, और एफ हमने एज्यूम करा गेटिंग बोथ क्वीन कार्ड्स. टोटल क्वीन कार्ड्स होते हैं 4, तो इनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं. कितने वेज? 4C2 वेज एंड ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52C2 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब दोनों ब्लैक भी हो एंड दोनों क्वीन कार्ड्स भी हो. 2 ब्लैक क्वीन कार्ड्स, टोटल 2 ही ब्लैक क्वीन होती हैं.
तो वही दोनों हमने सिलेक्ट करनी है। तो 2C2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52C2। अब जैसे ही हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 55 upon 221 which matches with option B. Now passing on to the next question, कहता a point R with x coordinate 6 lies on the line segment joining the points P and Q. Then the sum of coordinates of point R is. तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सम फाइंड करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट वी आर ऑलरेडी गिवन दैट इज 6, लेट द y कोऑर्डिनेट बी y एंड z कोऑर्डिनेट बी z। तो कुल मिला के मेरे को y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है एंड फॉर दैट वी आर गिवन दैट R point is lying on the line joining points P and Q, where coordinates of P are 1, -3, 2 and coordinates of Q are given, that is 9, 5, -4. We are given that R point is lying on the line segment joining P and Q. मान लेते हैं से R point है यहाँ पे, that is 6, y, z. अब अगर R पॉइंट PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है तो डेफिनेटली ये इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। लेट द रेशियो बी k/1 एंड यूजिंग दिस रेशियो आई कैन राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R इन टर्म्स ऑफ k। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे k into 9, that is 9k plus 1 into 1 upon k plus 1. Similarly, we can write the y coordinate, that is k into 5, 5k, and plus 1 into -3, that is -3 upon k plus 1. And similarly, the z coordinate is -4k, and plus 1 into 2, that is 2 upon k plus 1. So using section formula हमने r point के coordinates लिख लिए, and in fact r point के बारे में हमें पता क्या है, इसका जो x coordinate है that is equals to 6. तो जैसे ही ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो वी विल गेट 6k plus 6, k वाली टर्म्स एक साइड लाई तो 3k विल बी इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू आ गई 5/3 एंड वंस k की वैल्यू 5/3 आ गई तो x कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी पता है दैट इज 6, k की वैल्यू 5/3 यहां प्लेस करेंगे वी विल गेट द y, k की वैल्यू 5/3 यहां प्लेस करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ z, और जैसे ही हमें ये y और z की वैल्यूज मिल जाएंगी इन सबका सम फाइंड करेंगे, आंसर टर्न्स आउट टू बी 25/4 which matches with option B. Now question number 14 is the number of ways in which a team of 11 players can be selected from 15 players always including 2 particular players is. अब कहता कितने डिफरेंट वेज में हम 11 प्लेयर्स की टीम बना सकते हैं जिनमें 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स को हमेशा सिलेक्ट करना ही करना है। 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स मींस वो 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स हमें पता है कौन से हैं। अब सपोज टोटल 15 प्लेयर्स हैं, से P1, P2, P3, P4, P5 एंड सो ऑन, P13, P14 एंड P15। Now suppose इन 15 में से वो ऐसे 2 बेस्ट प्लेयर्स कौन से P2 एंड P5, ये 2 बेस्ट प्लेयर्स हैं, इनको तो हमने सिलेक्ट करना ही करना है, ये 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स। तो इनको सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? देयर इज ओनली वन वे, और कोई चॉइस बचती नहीं, इनको तो टीम में इंक्लूड करना ही करना है। तो टीम में P2, P5 तो डेफिनेटली आ गए। अब 11 मेंबर्स की टीम बननी है जिसमें से 2 तो ऑलरेडी आ गए, तो और कितने बच गए? 9 प्लेयर्स और चाहिए। आउट ऑफ, जब इन दोनों को सिलेक्ट कर ही लिया तो 15 में से 2 हमने ऑलरेडी साइड कर लिए, तो बच गए कितने प्लेयर्स? 13 प्लेयर्स। तो बेसिकली आउट ऑफ 13 प्लेयर्स आई हैव टू सिलेक्ट द 9 प्लेयर्स एंड दैट कैन बी डन इन 13 से 9 डिफरेंट वेज। तो 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स को भी इंक्लूड करना है और ये 9 भी सिलेक्ट करने हैं, तभी जाके 11 मेंबर्स की टीम बनेगी। दैट्स व्हाई यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 715 व्हिच मैचेस विद ऑप्शन डी। नाउ पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, कहता है इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 2, -1 and radius is √5, then the value of P and Q respectively is. And we know if
equation of circle in general is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, then we can easily write coordinates of center, that is minus g comma minus f. So using this concept, we can easily write the coordinates of center of the circle directly from this equation. तो center के coordinates आ जाएंगे x के coefficient का half along with negative sign, y के coefficient का half और इसका sign कर दो change. तो ये आ गए center के coordinates, और center के coordinates हमें already given है, that is 2, -1, और जैसे ही compare करेंगे तो minus p by 2 will be equals to 2 and minus q by 2 will be equals to -1. From here p की value आ जाएगी -4 and q की value आ जाएगी हमारे पास 2. तो डायरेक्टली यहीं से हमें p and q की वैल्यूज मिल गई, which matches with option A. The next question is the value of tangent of 23 pi by 3 is. अब 23 pi by 3 पे हमें वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले मैं इस एंगल को सिंप्लीफाई करूंगा और एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा. कैसे? 23 pi by 3, तो 23 के नजदीक 3 का मल्टीपल, दैट इज 24. तो आई कैन राइट दिस एज 24 pi minus pi होल डिवाइडेड बाय 3. तो जैसे डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे वी विल गेट टेंजेंट ऑफ 8 pi minus pi by 3. अब ध्यान से इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करा, तो जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स सेम. तो दिस इज माइनस टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3 एंड टेंजेंट पाई बाई 3 की वैल्यू है √3. तो फाइनली आंसर आ गया -√3 which matches with option B. Now 17th question is if f of x is x cos x then f dash of pi is equals to. f dash of pi फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो f dash x will be equals to, this is product of two functions. So using product rule we will get first function as it is, second का derivative is minus sin x, then plus second function as it is into derivative of first which is 1. f dash x हमारे पास आ गया, हमें फाइंड करना है f dash pi. तो पुट x equals to pi, we will get f dash of pi equals to x की जगह pi नेगेटिव, x की जगह pi, sin pi is 0 and cos pi की वैल्यू -1. तो ये टर्म हो गई 0, तो f dash pi आ गया -1 which matches with option D. Now question number 18 is the longest side of a triangle is 5 times the shortest side and the third side is 3 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 140 centimeter, then the minimum length of the shortest side is. तो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड फाइंड करने के लिए हमें जो कंडीशन गिवन है दैट इज पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. दिस इज एट लीस्ट 140. एट लीस्ट 140 मीन्स या तो 140 या उससे ज्यादा. तो इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 140. तो इस कंडीशन का यूज करके वी कैन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. अब मिनिमम लेंथ हम कैसे फाइंड करें? तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x. तो जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज 5 टाइम्स द शॉर्टेस्ट. लॉन्गेस्ट साइड इज 5 टाइम्स द शॉर्टेस्ट एंड साथ में कहता द थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. ये शॉर्टेस्ट, ये लॉन्गेस्ट, तो जो थर्ड साइड है दैट इज 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट इज 5x, इससे 3 सेंटीमीटर शॉर्ट, तो -3. तो ये आ गई ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ. और कंडीशन जिससे हम मिनिमम वैल्यू ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड फाइंड कर सकते हैं वो बोर्ड पे है, दैट इज पेरीमीटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 140. पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल दीज साइड्स. तो x प्लस 5x minus 3 प्लस 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 140. जैसे ही इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 एंड इनफैक्ट x ही थी लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. तो यहां से हम कंक्लूड करके बोल सकते हैं
minimum length of the shortest side is 13 centimeter, which matches with option C. And 19th question is the value of this expression is equals to, अगर आप ऑप्शंस में ध्यान दो तो ऑप्शंस में एंगल्स जो हैं दे आर 3A, 4A, 3A एंड 4A. तो हम 3A और 4A एंगल तक कैसे पहुंचे? दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर. तो अगर आप गिवन एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो तो इसमें एंगल A है, यहाँ एंगल A है, बट यहाँ एंगल है 2A. तो मैं पहले पूरी सिचुएशन को एंगल A में ही कन्वर्ट कर देता हूं. तो अप्लाइंग हाफ द एंगल रिजल्ट ओवर हियर वी विल गेट ये 2 एज इट इज. Sin 2A can be written as 2 sin A cos A, and ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज 8 cos A into sin cube A. तो क्लियरली नजर आ रहा है अब इन दोनों टर्म्स में से वी कैन टेक 4 sin A cos A कॉमन. तो आफ्टर टेकिंग 4 sin A cos A कॉमन वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस यहां हमारे पास बच जाएगा 2 sin square A, एंड वी नो 1 minus 2 sin square A that can be written as cos 2A. तो यहां तो cos 2A बन गया, बट यहां एंगल A है, यहां भी एंगल A है. अब अगर आप ध्यान दो, अगर मैं इस 4 को रीराइट कर दूं 2 into 2, तो 2 sin A cos A, दिस कैन बी रिटन एज sin 2A. अब फाइनली क्या बना? 2 sin 2A into cos 2A, which can be written as sin of double of this angle, which is 4A, and answer matches with option B. Now passing on to question number 20, कहता everybody in a room shakes hands with everybody else. The total number of handshakes is 171. Then total number of persons in a room are. तो हमें find करना है total number of persons in a room. तो let the total number of persons in a room be n. तो n की वैल्यू हम कैसे find करें? Now in order to find the value of n, we need to set an equation in terms of n. वो equation हम कैसे set करें? For that we are given that number of handshakes is 171. अब suppose करो दो persons हैं, person 1 and person 2. अब person 1 ने person 2 के साथ handshake करा या person 2 ने person 1 के साथ handshake करा. Are these two different handshakes? No. That is a single handshake. तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही, और जब भी ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन इन दैट सिचुएशन. और क्लियरली पता है हमें दो पर्सन के बीच में एक हैंडशेक होगा. तो इट मीन्स जितने दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही डिफरेंट हैंडशेक्स होंगे. तो n में से मेरे को कोई भी दो पर्सन सिलेक्ट करने, कितने डिफरेंट वेज में कर सकता हूं? NC 2 डिफरेंट वेज में. तो जितने ये कॉम्बिनेशंस बने उतने ही हैंडशेक्स होंगे. दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 171. तो अब आप जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे NC2 कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 171. अब यहां है n फैक्टोरियल, यहां n माइनस 2 फैक्टोरियल. So we can write n factorial as n into n minus 1 into n minus 2 factorial. तो ये हुआ आपस में cancel out. 2 factorial is 2 into 1 which is 2. Cross multiply करेंगे तो we will get a quadratic in terms of n. जैसे इस quadratic को solve करेंगे we will get the value of n as 19, which matches with option B. Now the next one is a bag contains 9 red and 5 white balls. 3 balls are drawn at random, then the probability of getting 1 red and 2 white balls is. तो probability find करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले total number of possible outcomes, और total number of possible outcomes उतनी ही होंगी जितने different ways में हम 3 balls select करेंगे from a bag containing total 14 balls. तो 14 में से मेरे को 3 balls select करनी है. We can select that in 14C 3 different ways. एंड अब हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स कौन सी है? गेटिंग 1 रेड एंड 2 व्हाइट बॉल्स. एक ही रेड बॉल चाहिए आउट ऑफ दीज 9. तो 9C1 वेज में वो हम एक रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ हमें चाहिए 2 व्हाइट बॉल्स आउट ऑफ 5. तो वी कैन सिलेक्ट 2 व्हाइट बॉल्स आउट ऑफ 5 व्हाइट बॉल्स इन 5C2 डिफरेंट वेज. एक रेड भी चाहिए एंड 2 व्हाइट चाहिए. दैट्स व्हाई यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल
ये आ गई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब हम इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 45/182 which matches with option A. Now passing on to question number 22, that is cos A plus cos B is 3/2. Then the value of cos square A by 2 plus cos square B by 2 is. तो अगर आप ध्यान दो जो गिवन कंडीशन है उसमें एंगल्स हैं A एंड B और जो टारगेट है वहां एंगल A by 2 B by 2, मतलब A से A by 2 एंड B से B by 2, एंगल्स का क्या हुआ हाफ। तो माइंड में आता है हाफ द एंगल रिजल्ट। तो यूजिंग हाफ द एंगल रिजल्ट cos A कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर इस एंगल का हाफ -1. Similarly, cos B using half the angle result can be written as 2 cos square इस angle का half -1 and this is equals to 3/2. अब जैसे यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे ये -1 becomes -2, साइड चेंज करेंगे तो बन गया 2. तो 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेते ही cos square A by 2 plus cos square B by 2 turns out to be 7/2. और जैसे ही हम इस 2 की साइड चेंज करेंगे क्लियरली नजर आ रहा है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जनरेट हो गया और इसकी वैल्यू आ गई 7/4 which matches with option C. Now 23rd question is whether the number of chords that can be drawn through 18 points on a circle is equals to. तो कहते सर्कल पे we are having 18 points, P1 से P2, third point 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, and say this is 18th point. तो सर्कल पे हमारे पास है 18 पॉइंट्स। तो कहता इन 18 पॉइंट्स की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी बन सकती हैं। लेट्स सी, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो वी विल गेट अ कॉर्ड। क्लियर? लेट्स सी, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो भी कॉर्ड बन गई एंड इनफैक्ट इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा एक और कॉर्ड बन जाएगी। वन ऑफ द वेज कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करता जाऊं और फिर काउंट कर लूं टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी है। बट अगर आप ध्यान दो ऑप्शन देखो 153, 306, 135, 288, तो हो सकता है ऐसा करने से कोई केस स्किप हो जाए। तो वी मस्ट नीड अ बेटर मेथड। लेट्स सी, सबसे पहली बात जब मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ करी मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा फिर इसको सिलेक्ट करा और दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब देखना ये है क्या ऑर्डरिंग मैटर करती है। पहले ये पॉइंट सिलेक्ट करा फिर ये सिलेक्ट करा ज्वाइन कर दिया बन गई कॉर्ड। अब अगर मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता फिर इसको सिलेक्ट करता तब भी तो सेम कॉर्ड बनी। इसका मतलब यहां ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही। आप पहले किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर लो कॉर्ड वही बनेगी। तो ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही, इट मींस वी विल यूज कॉम्बिनेशन ओवर हियर एंड क्लियरली नजर आ रहा है एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स विल गिव राइज टू 1 कॉर्ड। तो हमें ये देखना है दो पॉइंट्स के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो टोटल है 18 पॉइंट्स और एट ए टाइम 2 सेलेक्ट करने हैं कितने डिफरेंट वेज में, 18 सी 2 डिफरेंट वेज में। तो जितने दो के कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतनी ही डिफरेंट कॉर्ड्स बनेंगी। तो जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 153 व्हिच मैचेस विद ऑप्शन ए। नाउ 24th क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज if A, B, C are 3 mutually exclusive and exhaustive events of an experiment such that all these 3 are equal, then probability of A is equals to. तब ध्यान से सबसे पहले कहता A, B and C are 3 mutually exclusive and exhaustive events. It means A intersection B की अगर probability की बात करूं that must be 0 and probability of A intersection C की बात करूं वो भी 0, probability of B intersection C की बात करें वो भी 0 and in fact probability of A intersection B intersection C की बात करें वो भी 0। क्यों? Because A, B, C are 3 mutually exclusive events and साथ में कहता they are also exhaustive events. It means probability of A union B union C must be equal to probability of sample space and probability of sample space is always equals to 1.
So using this condition we can find the probability of event A. कैसे find करेंगे? Probability of A union B union C का result, that is probability of A plus probability of B plus probability of C, आगे आएगा minus probability of A intersection B which is 0, minus probability of B intersection C which is again 0, minus probability of B intersection C which is 0, and plus probability of A intersection B intersection C which is also 0. So using this condition we can find probability of A. कैसे find करेंगे? Let's see. Probability of A union B union C using the above relation, this is 1. अब यहाँ पे हम कैसे values substitute करें? For that we are given 4 times probability of A is equal to 3 times probability of B is equal to probability of C. Let each be equals to say K. So from here probability of C will be equals to K. Probability of B, that turns out to be K by 3, and probability of A, that is K by 4. तो जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो ये बन जाएगा 12, यहाँ जाएगा 3K plus 4K plus 12K and that is equals to 12. जैसे इन सबको ऐड करेंगे we will get 19K, तो K की वैल्यू यहां से आ जाएगी 12 by 19. बट हमें फाइंड क्या करना है? We have to find probability of A and probability of A was equals to K by 4. जैसे ही हम K की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 12 by 19, आंसर टर्न्स आउट टू बी 3 by 19 which matches with option D. Now the next one is this expression is equals to, तो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करो तीनों के तीनों एंगल्स हैं नॉन स्टैंडर्ड, तो इन सब पे वैल्यूज हमें पता ही नहीं, तो कैसे प्रोसीड करें? अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखो तो ऑप्शंस हैं 2, 1, -1, -2, सच अ नाइस नंबर. तो हमें प्रोसीड करने के लिए डेफिनेटली एंगल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. लेट्स सी 70 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री. तो अगर आप ऑब्जर्व करो इन तीनों में बहुत नाइस रिलेशन है. अगर आप 20 डिग्री एंड 50 डिग्री को ऐड करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 70 डिग्री. बट ध्यान से 70 डिग्री को मैं लिख तो सकता हूं 20 प्लस 50, बट अगर आप ऑब्जर्व करो 70 एंड 20 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो इसीलिए मैं 70 एंड 20 इनका यूज करूंगा कैसे? टू राइट 50 डिग्री. 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री will be equals to 50 डिग्री. तो इसीलिए डिनोमिनेटर वाले टेंजेंट 50 को मैं लिखूंगा 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री. एंड फ्रॉम हियर टेंजेंट ऑफ A माइनस B, यूजिंग द रिजल्ट वी विल गेट टेंजेंट A माइनस टेंजेंट B अपॉन, वो डिवाइड जब करेंगे तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी टर्म 1 प्लस टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B. तो अगर आप ध्यान दो ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा हो गया कैंसल आउट, बचा एंगल 70 एंड 20. बोला था ना दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो 70 डिग्री को मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री. तो ये बन गया फाइनली 1 प्लस tan ऑफ 90 माइनस 20 इज cot 20 डिग्री इंटू टेंजेंट 20 डिग्री. अब cot 20 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan 20. tan 20 आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचेगा 1. 1 प्लस 1, फाइनली आंसर आया 2 विच मैचेस विद ऑप्शन A. नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज if x plus 2 upon x minus 1 is greater than equals to -2, then x belongs to. तो x की वैल्यूज अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी मस्ट बी 0. तो सबसे पहला स्टेप रहेगा वी विल ऐड 2 ऑन बोथ द साइड्स. तो जैसे ही 2 ऐड करेंगे वी विल गेट x plus 2 upon x minus 2 plus 2 must be greater than equals to 0. क्योंकि सेम क्वांटिटी दोनों साइड ऐड करी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम. अब आगे कैसे प्रोसीड करें? क्लियरली नजर आ रहा है वी हैव टू टेक द एलसीएम. तो जैसे ही एलसीएम लेंगे x माइनस 2 आया डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 3x
-2 अपॉन x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसके बाद बनाए फर्दर केसेस, बट केसेस बनाएंगे तो ये हो जाएगा लेंदी। तो केसेस से बेटर है हम इस इनइक्वालिटी को फास्टर पेस पे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए वी विल कंसीडर रियल नंबर लाइन। सबसे पहले तो न्यूमिरेटर में ये जो फैक्टर है इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी 2/3 से x की वैल्यू 2/3 आ गई, मार्क कर देते हैं रियल नंबर लाइन पे। अब मैं इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी 2, तो x की वैल्यू 2 हम इस रियल नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स एक बार रियल नंबर लाइन पे आ जाएं तो इसके बाद आगे का स्टेप बहुत आसान है। कैसे? हम लोग सीधा x की वैल्यूज लिख सकते हैं। ध्यान से, एक्सट्रीम राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज करते जाओ। तो हमें चाहिए ओवरऑल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो भी क्वांटिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो हमें देखना है पॉजिटिव कहां पे है। एक तो 2 से लेके इंफिनिटी तक और एक 2/3 से ये चलता जाएगा माइनस इंफिनिटी तक। तो माइनस इंफिनिटी टू 2/3। अब ध्यान से 2/3 को इंक्लूड करना है या नहीं करना, पहली बात यहां इक्वालिटी है और ये न्यूमिनेटर वाली क्वांटिटी 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/3 विल बी इंक्लूडेड। यूनियन ये सारी वैल्यूज 2 टू इंफिनिटी। अब अगर आप ध्यान दो 2 फैक्टर आया, 2 जो वैल्यू मिली थी वो हमें इस फैक्टर से मिली थी, ये फैक्टर प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आ गया फाइनल आंसर विच मैचेस विद ऑप्शन डी। 27th क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज द वैल्यू ऑफ cot 75 डिग्री इज। तो 75 डिग्री को मैं ब्रेक कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। कैसे? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये बन गया cot ऑफ a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करा cot a प्लस cot b एंड न्यूमिनेटर में आ जाएगा cot a इंटू cot b -1। तो जैसे ही हम इन सब की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज cot 45 डिग्री इज 1, cot 30 डिग्री इज √3 -1 अपॉन 1 प्लस √3। तो जैसे ही हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए आई कैन राइट दिस एज √3 प्लस 1, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 -1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट इन द न्यूमिनेटर √3 -1 का होल स्क्वायर विच इज बेसिकली 4 - 2√3 अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट टर्न्स आउट टू बी 2। जैसे ही 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 2 - √3 which matches with option C. Now passing on to the next question, if sin alpha plus sin beta is equals to 1/2 and cos alpha minus cos beta is 3/4, then tan of alpha minus beta by 2 is equal to। तो अगर आप ध्यान दो यहां एंगल है अल्फा बीटा, जबकि टारगेट में जो एंगल है दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इस टाइप का एंगल जनरेट हो जाएगा अगर हम सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज कर दें प्रोडक्ट में। तो साइन सी प्लस साइन डी दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली cos c माइनस cos d, डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर हम प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो इस टाइप का एंगल दोबारा जनरेट हो जाएगा। cos c माइनस cos d इज -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/4। तो अब अगर आप ध्यान दो हमें चाहिए टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। टेंजेंट होता है साइन बाय कॉस, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और यहां है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो मैं इस पूरी कंडीशन को डिवाइड कर देता हूं बाय दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया डिनोमिनेटर में 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2
into cos of alpha minus beta by 2, this is equals to 1/2। तो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में आ गया 1/2। तो अब अगर आप ध्यान दो, ये 2 से 2 हुआ कैंसिल आउट, साइन वाली टर्म इससे हो गई कैंसिल आउट, साइन बाय कॉस दैट इज tan। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे we will get the final answer as -3/2, which matches with option C. Now the second last question of paper 1 is, कहता है if y is equals to this, then dy by dx is equals to, so we have to differentiate this with respect to x। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव टर्न्स आउट टू बी dy by dx एंड राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में फंक्शन प्रेजेंट है, तो दिस इज बेसिकली क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। तो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल। एंड अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल सबसे पहले आया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज into derivative of numerator, that is sin x plus cos x का derivative, and minus now numerator as it is, that is sin x plus cos x into derivative of denominator which is sin x minus cos x, इसका derivative। अब हम जैसे ये डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव that is cos x and cos x का डेरिवेटिव is minus sin x, तो ये आ गया इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव। एंड सिमिलरली जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, तो ये बन गया माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस sin x। अब हम जैसे ही इन ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज ऑप्शन ए। नाउ फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 इज the equation of hyperbola with eccentricity 3/2 and foci 0, plus minus 6 is। अगर आप ऑप्शंस में भी ध्यान दो तो सारी की सारी ऑप्शंस में स्टैंडर्ड हाइपरबोला की ही बात करी हुई है। तो क्योंकि फोसाई के कोऑर्डिनेट्स दे आर लाइंग अलोंग y एक्सिस, दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कुल मिला के मेरे को a और b की वैल्यूज ढूंढनी है, एंड फॉर दैट वी आर गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई 0, प्लस माइनस 6 मींस c की वैल्यू 6, इसेंट्रिसिटी गिवन है 3/2, इसेंट्रिसिटी E विल बी इक्वल टू c by a, इसेंट्रिसिटी इज 3/2, c की वैल्यू जैसे यहां 6 प्लेस करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग एज 4, a की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू 6 पता है, वी नीड द वैल्यू ऑफ b, फॉर दैट वी आर हैविंग द रिलेशनशिप बिटवीन a b एंड c, दैट इज b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू c स्क्वायर विच इज 36 माइनस a स्क्वायर विच इज 16, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20, तो b स्क्वायर की वैल्यू 20 यहां प्लेस करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू 16, तो आंसर मैचेस विद ऑप्शन सी। And with this, discussion of paper 1 is over. Now we are going to start with the discussion of paper 2. The very first question of paper 2 is, solve for x. We are given these two inequalities. Now solving for x का मतलब है we have to find all those real values of x जो इन दोनों inequalities को simultaneously करेंगी satisfy. For that, first of all, सबसे पहली inequality अगर मैं पिक कर लूं तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x वाली टर्म्स एक साइड पे लाऊंगा, subtracting 2x from both sides we will get 2x plus 3 less than equals to 17, and to find x we will subtract 3 from both sides, and ऐसा करते ही sign of inequality will remain same. Now dividing both sides by 2, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करा तो अगेन sign of inequality will remain same. तो यहां से x की कौन सी वैल्यूज मिली, लेस देन इक्वल्स टू 7, एंड सिमिलरली ऑन सॉल्विंग द सेकंड इनइक्वालिटी सबसे पहले मैं ऐड करूंगा 5 ऑन बोथ साइड, वी विल गेट 3x लेस देन 3, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें एंड इसको भी सेटिस्फाई करें। तो लेट्स सी दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस, ये हैं 7 और 7 से छोटे सारे सॉल्यूशंस, और ये कैसे हैं 1 से छोटे सारे, 1 नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इक्वालिटी नहीं है, 1 से छोटे सारे।
तो दोनों का कॉमन पार्ट आया 1 से लेके ये चलता जा रहा है, चलता जाएगा, चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो x की वैल्यूज हमें मिली माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड ध्यान से 1 दोनों में प्रेजेंट नहीं था तो इसीलिए नॉट इंक्लूडेड। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज in how many ways a committee consisting of 3 men and 2 women can be chosen from 7 men and 5 women। तो कहते कितने डिफरेंट वेज में हम कमेटी बना सकते हैं ऑफ 3 men and 2 women out of 7 men and 5 women। तो the number of ways in which a committee can be formed is same as the number of ways of selecting 3 men out of 7 and 2 women out of 5 women, and that can be done in 7C 3 ways, और 2 women select करनी out of 5 women, that can be done in 5C 2 ways। और क्योंकि हमें दोनों ही सेलेक्ट करने हैं दैट्स वाई यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल अब हम इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 350। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर द इलिप्स whose equation is given, find the coordinates of foci and length of latus rectum। तो coordinates of foci and length of latus rectum लिखने के लिए we need to write this equation in standard form, and for that right hand side पे होना चाहिए 1, तो 64 से डिवाइड करा we will get x square by 32 plus y square by 64 equals to 1। और अब अगर आप ध्यान दो क्योंकि y square के डिनोमिनेटर में टर्म बड़ी है तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद x square by b square plus y square by a square equals to 1 we will get the value of b square equals to 32 and a square की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64। We need to write the coordinates of foci for this standard ellipse। Coordinates of foci are 0, plus minus c। तो c की वैल्यू ढूंढने के लिए we need relationship between a, b and c and that is b square equals to a square minus c square। जैसे ही b square a square की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे we will get the value of c square as 32। तो C turns out to be 4√2। ध्यान से C है सेंटर ऑफ द इलिप्स से डिस्टेंस फोसाई का एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो C की वैल्यू आ गई 4√2। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0, plus minus 4√2 and we need to find the length of latus rectum also। Length of latus rectum is 2b square by a और जैसे ही हम b square की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज 32 और a की वैल्यू है यहां से 8, तो जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 8। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8 यूनिट। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज कहते हैं इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज आल्सो गिवन, we have to find the probability of E complement intersection F complement। तो क्लियरली नजर आ रहा है इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली कोई भी रिजल्ट नहीं है और अगर आप ध्यान दो इवेंट्स होते तो सेट्स हैं, तो वी कैन यूज सेट थ्योरी एंड यूजिंग सेट थ्योरी वी कैन राइट E complement intersection F complement as probability of E union F का whole complement, that is using De Morgan's law we can write E complement intersection F complement in this way। Now probability of complement of an event will be equal to 1 minus probability of this event and this event is E union F। इसके लिए हमें रिजल्ट पता है तो अप्लाइंग द रिजल्ट probability of first plus probability of second minus probability of their intersection एंड इन सब की वैल्यूज जैसे यहां प्लेस करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द आंसर एज 71/120। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस। तो क्वेश्चन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस का अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है वी विल फाइंड इट्स डेरिवेटिव
using quotient rule, and according to quotient rule f dash x will be equals to denominator का square and then denominator as it is into derivative of numerator minus the numerator as it is into derivative of denominator which is sin x. So after simplification we will get sin x and इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस. तो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल. तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस x log x and sin x का डेरिवेटिव इज cos x and whole divided by sin square x. So finally f dash x will be equals to sin x into x log x का डेरिवेटिव 1 by x plus log x as it is और x का डेरिवेटिव 1 minus x into log x into cos x and of course whole divided by sin square x. ऑफ कोर्स जैसे ही एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ तो फर्स्ट टर्म यहाँ ब्रैकेट के अंदर बन जाएगी 1. तो जैसे ही हम इसको बेटर फॉर्म में लिखेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर. नाउ पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. So find the ratio in which this plane divides the line joining the 2 points. So let the first point be A point. Coordinates है 4, 0, -3 and the second point is B. Say कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5, 7 और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी को एक प्लेन डिवाइड करता है इन सम रेशियो एंड वी आर गिवन इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन एज x + 2y + z = 3. तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय दिस प्लेन इन सम रेशियो. तो सोचने वाली बात है अगर लाइन एंड प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वी विल गेट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट इज से सी. तो सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर भी लाई कर रहा है एंड इनफैक्ट इस प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है. दिस इज सच अ नाइस पॉइंट. तो हम मान लेते हैं लेट दिस सी पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k ratio 1. Now in order to find the value of k we need to set an equation in terms of k और वो equation कैसे सेट करें let's see. सबसे पहले c पॉइंट जो है वो a b के ऊपर लाई कर रहा है तो using section formula I can write coordinates of c as k into 1 plus 1 into 4 that is k plus 4 divided by k plus 1 comma y coordinate will be k into -5 that is -5k and 1 into 0 that is 0 upon k plus 1 and k into 7 that is 7k plus 1 into -3 तो ये आ गया -3 upon k plus 1. c के coordinates आ गए but ये आए in terms of k. Now in order to find the value of k we need to set an equation in terms of k. For that c point is lying on this plane also. प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को डेफिनेटली क्या करेगा सेटिस्फाई. तो x की जगह पुट कर दिया पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो वी विल गेट k + 4 upon k + 1 प्लस 2 into y. y की जगह पे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 2 into ये आ गया हमारे पास -5k upon k + 1 एंड z की जगह पे पुट कर दिया पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 7k - 3 upon k + 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3. अब हम जैसे ही ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k एज -2/5 और k की वैल्यू आ गई नेगेटिव. तो जैसे ही हम यहां प्लेस करेंगे -2/5 रेशियो 1 रेशियो आ गई -2/5 रेशियो 1. जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को 5 से तो रेशियो फाइनली आ गई -2/5 और क्योंकि रेशियो में एक जगह नेगेटिव है तो फाइनली जो हम कंक्लूड करेंगे आंसर द प्लेन विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो 2/5 externally. Now passing on to question number 7, let us solve the system of inequalities graphically.
तो इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ये है लीनियर रिलेशनशिप इन x एंड y, तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। फॉर दैट राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8 वी विल गेट x by 8 प्लस y by 4 इक्वल्स टू 1। इसको हम अब इजीली प्लॉट कर सकते हैं ऑन द ग्राफ। हाँ जी, तो x इंटरसेप्ट है 8, so दिस इज पॉइंट 8,0 एंड y इंटरसेप्ट है 4, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑन y एक्सिस 0,4। लाइन विल पास थ्रू दीज टू पॉइंट्स एंड ऑफ कोर्स क्योंकि यहां इक्वालिटी है तो लाइन बनेगी डार्क पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। दिस लाइन इज x plus 2y equals to 8, but हमें चाहिए था रीजन corresponding to the inequality. For that we will consider a nice point which is not lying on this line. That nice point is 0,0. तो इस inequality में x की जगह 0 पुट करा, y की जगह 0 पुट करा, less than equals to 8, तो 0 less than equals to 8 which is definitely true. So it means जहां ये point है उसी तरफ वाला सारा रीजन सॉल्यूशन होगा ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो हमें रहना है इस लाइन के नीचे की तरफ। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इनइक्वालिटी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4 वी विल गेट x बाय 4 प्लस y बाय 4 इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट 4 एंड y इंटरसेप्ट भी आ गया 4। Same point on the y-axis, x intercept 4, y intercept 4. Line will pass through these two points, and of course equality है तो line बनेगी dark. ये है x plus y equals to 4. But हमें चाहिए इस inequality के corresponding region. For that we will again consider a nice point which is not lying on this line. Again 0,0 pick करा, इस inequality में put करेंगे x की जगह 0, y की जगह 0. इनफैक्ट y की जगह 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 0 4 से छोटा होता है। तो इट मींस यहां पे ओरिजिन की तरफ वाला सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि 0,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करा। तो कौन सा रीजन होगा? ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला। तो हमें रहना है इस लाइन के ऊपर की तरफ। Now finally this inequality again the similar steps, इसके corresponding equation x minus y equals to 0, तो ये बन गया x equals to y and x equal to y line will pass through 0,0 whose slope is 1, तो angle of inclination 45 degree, but strict inequality के कारण line बनेगी dotted. This is the line x equals to y. बट हमें चाहिए अगेन इस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन। फॉर दैट वी विल कंसिडर अ नाइस पॉइंट विच इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। वी विल कंसिडर 4,0, तो जैसे ही x की जगह 4 पुट करा, y की जगह 0 पुट करा, लेस देन 0, ये आ गया 4 लेस देन 0 विच इज नॉट ट्रू। तो इट मींस जिस साइड पे ये पॉइंट है उस साइड वाले सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो इस लाइन के हमें रहना है इस पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ। एंड ऑफ कोर्स x एंड y दे बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो फाइनली जो सॉल्यूशन होगा वो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, इस डॉटेड लाइन के रहना है ऊपर, और इनफैक्ट इस वाली लाइन के, इस लाइन के रहना है ऊपर, और अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, बाउंड्री चेंज हो गई, इस लाइन के रहना है नीचे। तो फाइनली ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज गिवन इनइक्वालिटीज। Now question number 8 is कहता prove that left hand side is equals to right hand side, और क्लियरली नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम और डिफरेंस है, डिनोमिनेटर में भी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंस प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड तक पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टू प्रोडक्ट। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमिनेटर में sin 5x sin x, इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो आई विल राइट दीज टू टर्म्स
and remaining term minus 2 sin 3x whole divided by cos 5x minus cos x. तो जैसे इन दोनों टर्म्स को क्लब करा, अब क्लियरली नजर आ रहा है साइन सी प्लस साइन डी, वी कैन राइट दिस एज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दैट टर्न्स आउट टू बी 3x इंटू कॉस सी माइनस डी 5x माइनस x 4x बाई 2, दैट इज 2x, and minus 2 sin 3x whole divided by cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d, that is 6x by 2 is 3x into sin c minus d 5x minus x 4x by 2 is 2x. तो अगर आप ध्यान दो, इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से 2 sin 3x आ गया कॉमन, एंड वी आर लेफ्ट विद cos 2x माइनस, ये पूरी टर्म कॉमन आ गई तो बचा 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x. तो 2 से 2 हुआ कैंसिल आउट, साइन 3x से साइन 3x हो गया कैंसिल आउट. बट अगर आप ध्यान दो, ये रिमेनिंग टर्म्स में एंगल है 2x और यहां भी है 2x, जबकि टारगेट में मेरे को चाहिए एंगल x. तो बेसिकली मेरे को इन एंगल का करना है हाफ. तो हाफ द एंगल रिजल्ट का अगर मैं यूज करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग नेगेटिव कॉमन, we will get minus of 1 minus cos 2x and whole divided by ये negative sign और sin 2x, that is 2 sin x into cos x. Negative से negative cancel out हुआ, and we know 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. तो जैसे यहाँ रिजल्ट अप्लाई करूंगा 1 minus cos 2x is 2 sin square इस एंगल का हाफ, that is x. तो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हुआ, एक sin x कैंसिल आउट हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद sin x by cos x which is equals to tan x, and that is our required target. Now the ninth question is, a committee of 5 persons is selected from 6 men and 4 women. What is the probability that the committee will have at least 3 men? In order to find the probability, first of all we need the total number of possible outcomes. So total number of possible outcomes will be same as the number of ways of selecting 5 persons out of 10 persons. So that can be done in 10c5 different ways. तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, you will get the answer as 252. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 252, मींस हम 252 डिफरेंट वेज में 5 पर्सन की कमेटी बना सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ वी नीड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. और फेवरेबल आउटकम्स के लिए ध्यान से, कितना फेवरेबल आउटकम्स कैसी हैं, वो सारी डिफरेंट वेज जिसमें कमेटी बनेगी जिनमें एटलीस्ट 3 मेन हो. अब एटलीस्ट 3 मेन का मतलब या तो कमेटी में 3 मेन होंगे, या 4 मेन होंगे, या 5 के 5 मेन होंगे. सिंस कमेटी will have at least 3 men. तो फेवरेबल आउटकम जो होंगी या तो कमेटी में होंगे 3 men, तो टोटल 5 की कमेटी है तो बची हुई 2 होंगी वुमेन एंड 2 वुमेन, और कमेटी में होंगे 4 men क्योंकि टोटल 5 चाहिए तो 1 वुमेन, और या फिर ऑल द 5 विल बी मेन एंड वुमेन उस कमेटी में कोई भी नहीं होगी. तो ये 3 पॉसिबल केसेस बनेंगे जिनकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो लेट्स सी फर्स्ट केस की काउंटिंग. 3 मेन चाहिए एंड वी कैन सेलेक्ट दी 3 मेन आउट ऑफ 6 इन हाउ मेनी वेज, 6 सी 3 वेज, और 2 वुमेन चाहिए आउट ऑफ 4, तो हम कोई भी 2 वुमेन सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 4. कितने डिफरेंट वेज में, 4c2 डिफरेंट वेज में. और क्योंकि मेन भी सिलेक्ट करने हैं वुमेन भी सिलेक्ट करनी है, दैट्स व्हाई यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल. ये आ गई फर्स्ट केस की काउंटिंग. जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस केस एज 120. सेकेंड केस की काउंटिंग.
हमें कमेटी के लिए चाहिए 4 मेन, तो मैं वो 4 मेन में सेलेक्ट करूंगा आउट ऑफ 6 इन 6 C4 डिफरेंट वेज, और एक वुमेन चाहिए आउट ऑफ 4, तो वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दी 1 वुमेन आउट ऑफ 4 इन 4C1 वेज। दोनों सेलेक्ट करने हैं, दैट्स वाई यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 60 एंड फाइनली द लास्ट केस इज 5 के 5 मेन आउट ऑफ 6 वी कैन सेलेक्ट इन 6C5 डिफरेंट वेज एंड कोई भी वुमेन नहीं सेलेक्ट करनी, तो इसका मतलब हमने सारी की सारी वुमेन रिजेक्ट करनी है एंड दैट कैन बी डन इन ओनली वन वे। क्योंकि ये दोनों को ट्रीट करना है तो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल वी विल गेट द आंसर एज 6। तो इधर दिस और दिस और दिस, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होंगी वो आएंगी इन सबको ऐड करके। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी 2 केसेस साइमल्टेनियसली अक्कर नहीं हो सकते। All these can't occur simultaneously. So using addition rule, we will get the total number of favorable outcomes as 186. So finally, probability that committee will have at least 3 men will be equals to total number of favorable outcomes, which turns out to be 186 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 252। अब आप इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। नाउ द 10th क्वेश्चन इज कैन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2। और अगर आप ध्यान दो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल्स हैं π/8, 3π/8, 5π/8, 7π/8, ऑल दीज आर दी नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स। तो जब भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स आ जाएं तो हमारा स्टेप होता है हम एंगल्स को रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब किन्हीं भी 2 एंगल्स का सम या डिफरेंस, स्टैंडर्ड तो नहीं बनता। लेट्स सी, सबसे पहले तो ये cos स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूंगा cos ऑफ π/8 का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म को लिखेंगे cos ऑफ 3π/8 का होल स्क्वायर एंड सिमिलरली द थर्ड टर्म and the fourth term in order to avoid any kind of error। अब अगर आप ध्यान दो तो π/8 और 7π/8 एंड 7π/8 एंगल्स को रिलेट करने का मतलब किन्हीं भी 2 का सम या डिफरेंस स्टैंडर्ड तो नहीं बन रहा। लेट्स सी, π/8 एंड 7π/8 अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो आई विल गेट 8π/8 विच इज 5 एंड पाई इज अ स्टैंडर्ड एंगल। तो इस ऑब्जर्वेशन का हम बेनिफिट उठा सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे? इस ऑब्जर्वेशन से मैं बड़े वाले एंगल को लिखूंगा π-π/8। तो cos ऑफ 7π/8 कैन बी रिटन एज cos ऑफ π-π/8 और इस पूरे का होल स्क्वायर एंड द फर्स्ट टर्म एज इट इज cos π/8 का होल स्क्वायर प्लस। अब अगर रिमेनिंग 2 टर्म्स देखो, इनमें एंगल है 3π/8 एंड 5π/8, तो 3π/8 एंड 5π/8 अगर आप ध्यान दो इनका सम विच इज अगेन 8π/8 दैट इज 5। फिर से ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट मिला, दोनों का सम बन गया एक स्टैंडर्ड एंगल। तो 5π/8 को मैं लिख सकता हूं π-3π/8 ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट। तो 5π/8 कैन बी रिटन एज π-3π/8 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर और ये सेकेंड टर्म एज इट इज। तो अब अगर आप ध्यान दो फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज cos 3π/8 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये बन जाएगा पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos होता है नेगेटिव तो लग गया नेगेटिव साइन और पाई के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम तो cos 3π/8 और इस पूरे का स्क्वायर। सिमिलरली अगेन पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव, पाई के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम तो cos ऑफ π/8 और इसका होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दो क्योंकि इसकी पावर इवन है तो ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी पॉजिटिव, सिमिलरली पावर इवन है तो नेगेटिव का बन जाएगा पॉजिटिव। अब अगर आप ध्यान दो
cos पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, cos पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका ट्वाइस, cos 3 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, cos 3 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ट्वाइस, एंड इनफैक्ट इन दोनों में से 2 आ गया कॉमन। अब अगर आप ध्यान दो, अभी भी पाई बाय 8 एंड 3 पाई बाय 8 दे आर नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स, इन पे वैल्यू हमें नहीं आती, तो हम आगे कैसे प्रोसीड करें? नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स है, फिर से हम एंगल्स को रिलेट करेंगे। इस बार सिर्फ दो ही एंगल्स हैं, पाई बाय 8 एंड 3 पाई बाय 8। सबसे पहले चेक करा इनका सम, ये बन जाएगा 4 पाई बाय 8 विच इज पाई बाय 2 विच इज अगेन अ स्टैंडर्ड एंगल। तो अगेन इस ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट हम उठा सकते हैं, कैसे? 3 पाई बाय 8 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, तो 2 एज इट इज cos पाई बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 पाई बाय 8 कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 इस पूरे का होल स्क्वायर। और अब अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट टर्म एज इट इज cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 मीन्स 90 में से कुछ माइनस करा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में cos पॉजिटिव, और पाई बाय 2 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, cos चेंजेस टू साइन, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 8 और इस पूरे का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर पाई बाय 8। अब अगर आप ध्यान दो एंगल्स दोनों जगह सेम है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वी नो द आइडेंटिटी दैट इज 1, तो ये क्वांटिटी बन गई 1 इंटू 2, ये बन गया फाइनली 2 विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इफ NPR is equals to 720 and NCR is equals to 120 then find the value of N and R। तो दो अननोन्स हैं, वी नीड टू कंडीशंस और वो ऑलरेडी हमें दी भी हुई हैं, वन इज NPR एंड NCR, इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, NPR कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल and this is equals to 720, and in fact NCR can be written as n factorial by r factorial into n minus r factorial and this is equals to 120। अब अगर आप ध्यान दो इन दोनों इक्वेशंस में n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल दोनों जगह प्रेजेंट थे, तो मैं एक काम करता हूं ना, सेकेंड वाली कंडीशन में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, दैट इज 720। तो 720 बाय r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट r फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू 6। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टोरियल की फॉर्म में टर्म प्रेजेंट है, तो मैं राइट हैंड साइड को भी क्यों ना फैक्टोरियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं। फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सो 6 कैन बी रिटन एज 3 into 2 into 1, दिस इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ऑन कंपेयरिंग r की वैल्यू हमें मिल गई 3, एंड जैसे ही r की वैल्यू मिल गई, नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ n ऑल्सो। कैसे? r की वैल्यू मैं यहां प्लेस करूंगा, वी विल गेट n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 720। तो n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है n माइनस 3 फैक्टोरियल, डेफिनेटली n फैक्टोरियल बड़ा है, तो आई कैन रीराइट दिस एज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल divided by this n minus 3 factorial which is equals to 720. So n minus 3 factorial से ये हुआ cancel out, so we will get n into n minus 1 into n minus 2, that is n square minus 3n plus 2 equals to 720. Further brackets open करेंगे, we will get n cube minus 3n square plus 2n, और ये constant की side change करी तो we will get a cubic in terms of n, और क्यूबिक अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आप इस क्यूबिक को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स एंड हुज सेंटर लाइज इन द लाइन दिस। तो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सेंटर लाइन पे लाई कर रहा है, तो इट मीन्स सर्कल है कुछ ऐसा which is passing through the point 2, 4 and also passing through the point 1, minus 3, and center of this circle is lying on the line whose equation is given to us. Now we have to find the equation of such a circle. अब equation of circle find करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, one is center of the circle and the second one is radius of the circle.
तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में एज्यूम कर लेता हूं h, k एंड रेडियस एज्यूम कर लेता हूं r। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो कुल मिला के मेरे को 3 अननोन्स ढूंढने हैं, कौन से h, k एंड r। अब h, k और r कैसे फाइंड करें? वी मस्ट यूज द कंडीशंस। पहली कंडीशन, सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो x की जगह पुट कर दिया 2 और y की जगह पे पुट कर दिया हमने 4। तो जैसे मैं ये स्क्वायर ओपन करूंगा, आई विल गेट वन कंडीशन दैट इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 8k एंड कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास प्लस 20 इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन इन्वॉल्विंग h, k एंड r। ऐसी और भी कंडीशंस हमें चाहिए। कैसे फाइंड करें? नेक्स्ट, वी नो दैट दिस सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट भी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। x की जगह पुट करा 1, y की जगह पुट करा -3 इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब यहां भी अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा, आई विल गेट अनदर कंडीशन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6k एंड प्लस कांस्टेंट 10 दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। बट ये दोनों इक्वेशंस काफी कॉम्प्लेक्स हैं, h स्क्वायर, k स्क्वायर, r स्क्वायर दोनों में इन्वॉल्व है। बट हाँ, अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई विल गेट अ नाइस रिलेशन। क्यों? h स्क्वायर, k स्क्वायर, r स्क्वायर, ये तीनों तो आपस में हो गए कैंसिल आउट। नाउ वी आर लेफ्ट विद माइनस 2h माइनस 14k एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं थ्रू आउट -2 से डिवाइड कर दूं, वी विल गेट h प्लस 7k माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज अ नाइस रिलेशन बिटवीन h एंड k। दो अननोन्स हैं यहाँ पे h एंड k, तो ऐसे ही एक रिलेशन और मिल जाए तो मैं सॉल्व करके h एंड k की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं। कैसे? अगर आप ध्यान दो, सेंटर इज h, k एंड दैट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, तो ये पॉइंट अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो x की जगह पुट कर दिया h एंड y की जगह पुट कर दिया k और साथ में है प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, h कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट टर्न्स आउट टू बी 1। k की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h की वैल्यू टर्न्स आउट टू बी -2। h एंड k मिल गए, अब बच गया रेडियस। अगर आप ध्यान दो, h एंड k की वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो आई विल गेट r इक्वल्स टू 5। h, k एंड r मिल गए। अब मैं फाइनली इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकता हूं। यहां h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा -2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू k की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो y माइनस 1 होल स्क्वायर, r की वैल्यू 5, तो इक्वल्स टू 25। दिस इज फाइनली द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। Now the second last question of paper 2 is to find the derivative of root of sin x using first principle। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा let f of x is equals to root of sin x। अब हमें अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है using first principle, तो according to first principle f dash x is equals to limit of f of x plus h minus f of x whole divided by h as h is approaching to 0। So we have to use this definition to find the derivative of the given function। सबसे पहले हमें चाहिए f of x plus h। तो f of x तो है, तो x की जगह पे हमें डालना है x plus h। तो यहां भी x है, तो इसकी जगह पे भी हम रखेंगे x plus h। तो f of x plus h will be equals to root of sin of x की जगह पे x plus h minus f of x। f of x is the same function that is root of sin x whole divided by h as h is approaching to 0, and this will give us the derivative of the given function। अब ये लिमिट अगर इवेल्युएट हो जाए तो we will get our required answer। तो लिमिट कैसे इवेल्युएट करें? सबसे पहली बात, स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हो गए, तो स्क्वायर रूट्स अगर इन्वॉल्व हो गए तो मैं आगे बढ़ने के लिए इसको करूंगा रैशनलाइज।
so that यहां से स्क्वायर रूट्स एलिमिनेट हो जाए। तो रैशनलाइज करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स एंड डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट a square will be sin of x plus h minus b square, इसका स्क्वायर करेंगे तो we will get sin x whole divided by h and into ये क्वांटिटी यहां मल्टीप्लाई हो गए, एडजस्ट हो गई, बचा सिर्फ डिनोमिनेटर दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ साइन x। नाउ वी हैव टू इवेल्युएट दिस लिमिट। अगर आप ध्यान दो यहां सबसे पहले, क्योंकि मेरे को साइन एक्स नजर आ रहा है, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी का मैं रिजल्ट अप्लाई करूंगा, आई विल गेट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और क्योंकि लिमिट एच पे है तो फर्स्ट टर्म अगर आप ध्यान दो और लास्ट टर्म की तरफ ध्यान दो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, एच नहीं है। तो मैं इन दोनों टर्म्स में से साइन एक्स को कॉमन निकालूंगा, तो आई विल गेट कॉस एच माइनस 1 प्लस जो बची हुई टर्म है दैट इज कॉस एक्स इंटू साइन एच होल डिवाइडेड बाय एच। तो मतलब फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में भी एच और सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में भी एच। तो ये तो है फर्स्ट टर्म जिसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, एंड ऑफ कोर्स इनटू लिमिट ऑफ सेकेंड दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। अगर आप ध्यान दो तो यहां अब हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं लिमिट्स के, दैट इज लिमिट ऑफ एच अप्रोचिंग टू 0 साइन एच बाय एच दैट इज 1, एंड इनफैक्ट अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकालूं तो आई विल गेट 1 माइनस कॉस एच बाय एच, इसकी लिमिट एज एच अप्रोचिंग टू 0, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो आई विल गेट लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म, इनफैक्ट माइनस कॉमन निकाला, ये साइन एक्स एज इट इज, वी विल गेट 1 माइनस कॉस एच बाय एच, and in fact limit of the second limit h approaching to 0 cos x into sin h by h, and in fact इस पूरी टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर मैं h को 0 रखूंगा तो यहां बनेगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, दैट टर्न्स आउट टू बी 1 अपॉन 2 रूट साइन एक्स। अब अगर आप ध्यान दो साइन एक्स इनफैक्ट माइनस साइन एक्स बीइंग कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा और इसकी लिमिट हो जाएगी 0, तो ये पार्ट 0। कॉस एक्स बीइंग कांस्टेंट, क्योंकि लिमिट एच पे है, यहां एच वाली टर्म नहीं है, तो बीइंग कांस्टेंट ये लिमिट से बाहर आएगा, इसकी लिमिट बन जाएगी 1। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट ओनली कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 रूट साइन एक्स। तो फाइनली आंसर आया कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, एंड दिस इज द डेरिवेटिव of the given function, that is root sin x. Now finally the last question of paper 2 is to prove that left hand side is equals to 3 by 16. तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर 3 by 16 के बराबर प्रूव करना है तो क्लियरली नजर आ रहा है ये 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री ऑल दीज आर नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स, बट हाँ साइन 60 डिग्री की हमें वैल्यू पता है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे साइन 60 की वैल्यू प्लेस करी, दैट इज रूट 3 बाई 2, एंड रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब यहां से आगे प्रोसीड करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है प्रोडक्ट, एंड आगे बढ़ने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं टू सम और डिफरेंस। फॉर दैट I will treat this quantity as sin A into sin B. तो मैं इन दोनों पे रिजल्ट लगाना चाहता हूं पहले, but for that I will multiply by -2 and further divide by -2.
तो ये बनेगा -2 sin A sin B and that turns out to be cos of A plus B, that is 60 degree, minus cos of A minus B, 20 degree minus 40 degree is minus 20 degree, and इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ sin 80 डिग्री। तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे फर्दर, सबसे पहले ये एंगल पॉजिटिव, यहाँ एंगल नेगेटिव, एंड वी नो cos of minus theta is cos theta, तो ये नेगेटिव हुआ एडजस्ट। आगे प्रोसीड करने के लिए अगर आप ध्यान दो, cos 60 डिग्री विच इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1/2। तो एक काम करता हूं, यहां से ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो आई विल गेट -√3/8 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस √3/4 इंटू cos 20 डिग्री। बट ध्यान से इस पूरे के साथ अभी sin 80 डिग्री भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और जैसे ही अब फाइनली मैं फिर से ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, आई विल गेट -√3/8 इंटू sin 80 डिग्री एंड प्लस √3/4 cos 20 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। और फिर से दोनों के दोनों नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या है यहाँ, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाली सिचुएशन को हम बदल सकते हैं ईदर सम और डिफरेंस में, बट फॉर दैट आगे 2 होना चाहिए, तो 2 से करा मल्टीप्लाई एंड 2 से कर दिया डिवाइड। तो 2 cos A sin B रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √3/8, और 2 cos A sin B टर्न्स आउट टू बी sin of A plus B, that is 100 degree, and minus sin of A minus B, and 20 degree minus 80 degree is minus 60 degree। अब फर्दर आगे बढ़ने के लिए ये है sin 100 डिग्री और यहाँ है sin of माइनस थीटा। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, एंगल बनाऊंगा पॉजिटिव। कैसे? sin of माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, ये नेगेटिव बाहर आया, नेगेटिव ऑलरेडी था, बन गया प्लस। अब अगर आप ध्यान दो, sin 60 डिग्री की वैल्यू दैट इज √3/2। अब हम जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वी विल गेट -√3/8 sin 80 डिग्री एंड प्लस √3/8 इंटू साइन ऑफ 100 डिग्री, एंड साथ में आया √3/8 इंटू √3/2 दैट इज 3/16। और अगर आप ध्यान दो, राइट हैंड साइड पे मेरे को 3/16 चाहिए जो जनरेट हो गया, तो इसका मतलब ये रिमेनिंग टर्म्स आपस में कैंसिल हो जानी चाहिए। लेट्स सी ये कैंसिल कैसे होंगी। अगर आप ध्यान दो, 80 डिग्री 100 डिग्री फिर से नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, बट इनमें बहुत ही नाइस रिलेशन है। क्यों? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आई विल गेट 180 डिग्री विच इज अ स्टैंडर्ड एंगल। इसी ऑब्जर्वेशन का यूज करूंगा तो मैं 100 डिग्री को लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। So using this observation I will get -√3/8 sin 80 डिग्री प्लस √3/8 100 डिग्री को हमने लिखा 180 माइनस 80 एंड ऑफ कोर्स 3/16 एज इट इज। तो अब अगर आप ध्यान दो, 180 में से कुछ माइनस करा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन रहेगा पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म एज इट इज। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और बाहर भी पॉजिटिव, तो प्लस √3/8, और 180 डिग्री के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन द सेम, तो साइन ऑफ 80 डिग्री। अब अगर आप ध्यान दो, नेगेटिव पॉजिटिव सेम टर्म हो जाएंगी, कैंसिल आउट, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद 3/16 which is equal to the right hand side. And with this discussion of this full course test 3 is over, and I hope you really enjoyed this discussion. If you want more videos like this, do subscribe the RN Classes channel and share this video with your friends.